Everyone, welcome to Gyanbud Academy. I am Madhulika. Today is your 26th December, and this is a very important article from your Economic Times, and it is talking about your Himalayan glacier, but why it is in news and what is its strategic importance regarding our relationship with China and our neighbors in whole. The whole article is regarding the same. So, before I jump into the discussion, I would like you to give you an brief introduction to the topic. So, basically, the article it is talking about the Himalayan glacier. So, what has happened? Why it is in news? Firstly, I would say that there was a suggestion or recommendation given by Parliamentary Standing Committee, which was rejected by the government of India. Why it was rejected? What was the first? The suggestion was that India should extend its agreements, or you can say your regional cooperation should be with China or its neighbors in whole about the melting Himalayan glaciers threats, about the threats that will be coming up with the growing Himalayan glaciers melting and its outburst into floods and water management challenges. So, regarding that, the Parliamentary Standing Committee had given suggestion that India should be doing some kind of agreement or regional cooperations with China or other neighbors for saving or for taking measures about the melting Himalayan glacier. So, this was the suggestion. This was rejected by the government of India on the grounds that we are already dealing with border issues. Border issues of what? Regarding your LAC, that is your border issue with China. Our China Indo China border issue is not solved since 3 years, and we are again facing security threats or other such problems. If this is not solved, India at the current junction, remember this word current junction, it cannot go with any kind of glacier related agreement or taking actions regarding the melting glacier of Himalayas with China. India cannot. So the government has rejected this proposal of Parliamentary Standing Committee. This is the whole crux of the topic. Now let us look to the article. Plus, I would also say that India has rejected the data sharing, glacier data sharing. मतलब एक मेजरमेंट होता है कि कितना बढ़ गया है, कितना परसेंटेज हैज़ increased the melting, and how what would be the outcome in next 5 to 10 years. That data India has rejected to share with China. Firstly, you must be knowing that China's data is not authentic. China's data is never authentic. They do not give proper data. Their agency do not give proper data. It is doubtful. But India's agency, like your CSO and all, these kind of agencies, India, they provide authentic data, and proper measures, which they allow deny to share with China and extend any kind of cooperation with China on which regards on glacier regards. So that is your whole news. Let us read now. Glacier ties should not mean non-cop. Non-cop here means non-cooperative. Now, what is the meaning of here non-cooperative? So, it is trying to tell about the failure, or you can say a refusal to cooperate. Refusal to cooperate in what regard? Refusal to cooperate in regards of Himalayan glacier with whom? With China. So, India is telling that glacier site should नॉट बी मेंट फॉर नॉन कॉपरेट, मतलब इसमें कॉपरेट करने का जो आवश्यकता है वो अभी के टाइम पे नहीं दिख रहा. So now let us look at the article, and I would also like to tell you that there are some reports and data released, so that is why it is also in news. So here, an International Center for Integrated Mountain Development report released earlier this year warns that glacier in Hindu Kush Himalayas are melting at unprecedented rate. This could lose up to 75% of their volume by the end of the century, leading to flooding and water shortage for the nearly 2 billion people who live downstream of the rivers. Such warnings mean that internationally monitoring of glacier will be crucial bulwark for safeguarding the region's future. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट डेटा रिलीज हुआ, ICIMO डी का एक डेटा रिलीज़ हुआ. ठीक है, डेटा में रिलीज़ होकर क्या बताया गया उस डेटा में बताया गया कि हिंदू कुश रीजन है हिमालय का. आप जानते हैं हिमालय का टॉप रीजन या अपर रीजन
जो आपका हिंदू कुश रीजन है, वहाँ पे इतना ज़्यादा मेल्टिंग ग्लेशियर हो रहा है. I do not need to tell you why the glacier is melting at such a rapidly. We know today's global warming वो एक मेजर रीज़न है कि क्यों इतना परसेंटेज में इतना हाईली ग्लेशियर यानी हिमालयन का स्नो बोल सकते हैं, ग्लेशियर बोल सकते हैं, या बर्फ़ वो पिघल क्यों रहा है एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट. अनप्रेसिडेंटेड मतलब अनमेजरेबल, इतना ज़्यादा इंक्रीजिंगली रेट में वो मेल्ट हो रहा है कि उनका डेटा के हिसाब 75% ऑफ द वॉल्यूम मतलब डेटा जो भी कवर्ड है उनका स्नो हिमालयन का ग्लेशियर है, 75%. अगर 100% है तो उसमें 75% कैन रिड्यूस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी. हम लोग कौन सा सेंचुरी में, 21st सेंचुरी. ठीक है. एंड वॉट विल इट लीड टू फ्लडिंग एंड वाटर शॉर्टेज फॉर नियरली 2 बिलियन पीपल. 2 बिलियन पीपल हु लीड डाउन स्ट्रीम द रिवर्स. मतलब जो नीचे हिमालयंस के हिमालयन, अगर ये हिमालयंस और नीचे जो भी पीपल है उनके लिए ये बहुत नुकसान है. इट कैन लीड टू फ्लड, इट कैन ऑल्सो लीड टू वाटर मैनेजमेंट challenges. It can even turn to your challenge the riverine system of the country. riverine system पूरा देश में फ्लड आना या फिर वाटर मैनेजमेंट का दिक्कत होना, रिवराइन सिस्टम में चेंजेस आना, तो ये सम ऑफ द इम्पैक्ट है. आप ध्यान दीजिएगा, ग्लेशियर जो हिमालयन का जो मेल्टिंग ग्लेशियर का इम्पैक्ट बहुत सारा होता है. आप उसे जाके देख सकते हैं और वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं. इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर एवरी टाइम द हिमालयन क्वेश्चंस आर फेमस और हॉट फॉर द टॉपिक. तो उनके हिसाब से ये हो सकता है. और इसके अलावा बोला जा रहा है कि सच वार्निंग मीन्स इंटरनेशनल मॉनिटरिंग ऑफ ग्लेशियर विल बी क्रूशियल बुलमार्क फॉर सेफ गार्डिंग द रीजन्स फ्यूचर. इसमें बोल रहा है कि अगर इतना प्रॉब्लम क्रूशियल प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुलमार्क. सो बुलमार्क मीन्स अ डिफेंसिव वॉल और डिफेंसिव सिस्टम शुड बी टेकन अप. मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कंट्रीज़ है हमारे, फॉर एग्जांपल इंडिया है और जितना भी हमारे नेबर्स है, उन लोगों को मिल के, जो हिमालयन से सराउंडेड है उन लोगों को मिल के इंटरनेशनल लेवल पे कोई सोल्यूशन लाना चाहिए ताकि ये मॉनिटरिंग हो सके ग्लेशियर का कि कितना ज़्यादा ये आज के टाइम पे दिक्कत कर सकता है. इसके लिए कोई मेजर लिया जाए ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी घटना ना हो. ये जो एंड ऑफ द सेंचुरी जो बोला जा रहा है वो सब घटना ना हो. नेक्स्ट. But last week, Government of India rejected Parliament's panel's recommendation for data sharing agreement on Himalayan glacier with countries of the region, including not best of pulse China. This is short-sighted step. One reason cited to reject the panel's report is international security. Any mechanism that would give Beijing information access to the upper reaches of the Himalaya, a natural border, is a non-starter. This is why joint mechanism on glacier proposed by the previous Indian government was also abandoned. तो इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि हालांकि इसमें बोला गया कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग करना चाहिए, स्टेप्स लेना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे सारे कंट्रीज़ को, इंडिया और उसके नेबर्स, इंडिया प्लस देयर नेबर्स शुड कम अप. लेकिन इस प्रपोजल को कौन रिजेक्ट कर दिया? हमारे गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया. किसके द्वारा? पार्लियामेंट्स पैनल्स रिकमेंडेशन. यहाँ पे बोल रहा है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उनका रिकमेंडेशन था कि इंडिया को डेटा शेयर करना चाहिए. किस बेसिस में इंडिया को डेटा शेयर करना चाहिए? हिमालयन ग्लेशियर पे कि उसका कितना मेल्टिंग हो रहा है, कितना दिक्कत का बात है इसके लिए, या फिर उसका क्या बिहेवियर है, क्या नेचर है हिमालयस का, उसको डेटा शेयर करना चाहिए. ठीक है. लेकिन क्यों डेटा शेयर करना चाहिए? ताकि रीजनल कोऑपरेशन हो सके या फिर आपका एग्रीमेंट हो सके चाइना वगैरह के साथ, और इससे हम लोग मेजर्स ले सके ग्लेशियर को सेव करने का. इसीलिए वो बोलते हैं कि डेटा शेयर करना चाहिए. और ये रिकमेंडेशन को किसका रिजेक्ट कर दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया. दिस इज़ अ शॉर्ट साइटेड स्टेप. मतलब ये बहुत ही हमारे आश्चर्य वाला स्टेप है. हालांकि एक रीज़न जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है रिजेक्ट करने का रिपोर्ट, ये पैनल का रिकमेंडेशन, वो है आपका नेशनल सिक्योरिटी. नेशनल सिक्योरिटी मीन्स विच इज़ टॉकिंग अबाउट योर LAC, the border issues that we are dealing with China since last 3 years. It is so high that we cannot think of any other measure or any other agreement with China. ये सॉल्व हुआ ही नहीं, हम लोग आगे जा नहीं सकते. और करेंट जंक्शन पे इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया टू मेक एनी सच एग्रीमेंट विथ चाइना. इट इज़ सेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ रीज़न टू रिजेक्ट सच रिकमेंडेशन. इसके अलावा बोल रहा है कि एनी मैकेनिज्म दैट वुड ब्रिंग बीजिंग इंफॉर्मेशन एसेस टू द अपर रीचेस ऑफ द हिमालयस एंड नेचुरल बॉर्डर इज़ अ नॉन स्टार्टर. नॉन स्टार्टर मतलब क्या होगा कि इट विल बी हैव नो चांस ऑफ फेलियर. इट विल हैव
it will have no chance of failure. Okay, no chance of failure. Sorry, no chance of success. There will be no chance of success क्योंकि बीजिंग we all know it is the capital of what? It is the capital of China. So अगर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं या फिर कुछ स्टेप लेते हैं कॉपरेट करने के लिए अपर रीचेस ऑफ द हिमालय विच इज़ योर नेचुरल बॉर्डर. आप लोगों को पता होगा अपर रीचेस ऑफ हिमालय से ही हम लोग का नेचुरल बॉर्डर एलएसी का बात होता है. इंडिया चाइना बॉर्डर इट इज़ इन द अपर रीजन्स ऑफ द हिमालय. इट इज़ अ नॉन स्टार्टर विच मीन्स ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा इस समय इस करेंट सिचुएशन में. दिस इज़ वाई अ जॉइंट मैकेनिज्म ऑन ग्लेशियर प्रपोज्ड प्रीवियस बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट वाज आल्सो अबैंडन्ड. यही रीज़न था कि पहले भी गवर्नमेंट के पास ऐसा प्रपोजल आया था जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. ये फर्स्ट टाइम नहीं है. नेक्स्ट. Yet, given the precarity of the climate changes, government of India must find a solution that balances national security and environment economic demands. India must step its reaches on research on glacier and augment its understanding of the issue. As major countries of the region, both India and China must engage with this. New Delhi can take a leaf from Washington's book on balancing immediate and long term security needs. Even though the security concerns are qualitatively different, India can relate to the difficulties of US China relationship. Washington and Beijing identify climate change as a sphere that requires both to work together. Despite the problematic bilateral relationship, even India aligns with China in international climate negotiation. A similar path and holistic view could benefit India and the region in this climate hit area. सो इस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है? पहले तो ये बोला जा रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिकैरिटी. प्रिकैरिटी बेसिकली मीन्स अ स्टेट ऑफ persistent insecurity. ठीक है, इनसिक्योरिटी रिगार्डिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ देयर. सो गवर्नमेंट मस्ट फाइंड सोल्यूशन. यहाँ पे आर्टिकल में ऑथर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को सोल्यूशन फाइंड करना चाहिए ताकि एक बैलेंस हो सके किस में नेशनल सिक्योरिटी को और इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहा है. तो क्योंकि गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी का एज अ रीज़न दे रही है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक ग्लेशियर पे वो लोग काम नहीं करने जा रही है, तो इसलिए ऑथर का कहना है कि उनको एक प्रॉपर बैलेंस करना चाहिए टू डील विथ सच इनसिक्योरिटीज़ रिगार्डिंग योर नेशनल इशू भी जहाँ बैलेंस रहे. हमारा नेशनल इशू क्या है? बॉर्डर इशू विथ चाइना, वो हमारा बॉर्डर इशू है. नेशनल इशू इन्वायरमेंटल इशू आपका क्या हो गया? ग्लेशियर का जो मेल्टिंग हो रहा है उसको लेकर वहाँ पे बोलती है ऑथर कि बैलेंस बनाना चाहिए, ये रीज़न नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसे कहना है. तो इसके सोल्यूशन निकालिए. पहले, इंडिया मस्ट स्टेप अप इट्स रीचेज ऑन ग्लेशियर रिसर्च ऑन ग्लेशियर एंड आर्ग्यूमेंट इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू. तो वो इसमें ये भी बोला जा रहा है कि जो इतना प्रॉब्लम बढ़ रहा है वो इंटरनेशनल रिपोर्ट आपका जो आया है वैसे ही रिपोर्ट्स इंडिया को जारी करना चाहिए, रिसर्च और करना चाहिए कि क्या हम लोग कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए ताकि इशू क्या होगा आपका रिजॉल्व हो सके. एज मेजर कंट्रीज ऑफ द रीजन, इसमें ये भी आपका बोला जा रहा है कि इंडिया मस्ट as major countries both China and India they must engage in such kind of projects और agreement क्योंकि it is the need of the hour. हम लोग स्टेप नहीं लेंगे तो क्या होगा? फ्लड से पूरा जो नीचे वाला हिमालयस का रीजन से सारा फ्लड से फ्लडेड हो जाएगा और बहुत सारा डिफ़िकल्टी आ जाएगा. तो न्यू दिल्ली यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट, it is talking about the government, must take a leaf from Washington's book of balancing immediate and long-term security needs. तो उनमें बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट शुड टेक एन एग्जाम्पल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक अ लीफ? मीन्स कॉपी, इमीडिएट, टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वॉशिंगटन यानी यूएस से हम लोग को सीखना चाहिए कैसे बैलेंस करना चाहिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी नीड्स को. इवन दो द सिक्योरिटी कंसर्न्स आर qualitatively different, India can relate to the difficulties of US-China relationship. इसके अलावा इसमें बोला जा रहा है वॉशिंगटन एंड बीजिंग आइडेंटिफाई क्लाइमेट चेंजेस एज अ सेपरेट स्पीयर दैट रिक्वायर्स बोथ टू वर्क टुगेदर. तो इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग कैसे नेशनल सिक्योरिटी को ओवरलैप करें इन्वायरमेंट इश्यूज़ के साथ. नेशनल सिक्योरिटी का दिक्कत आ रहा है इसलिए हम लोग इन्वायरमेंट के लिए काम करना नहीं चाह रहे मिल के चाइना के साथ. लेकिन उनका कहना है कि देखिए चाइना और वॉशिंगटन, चाइना और यूएस, ये लोग को क्लाइमेट चेंज एज अ सेपरेट स्पीयर देखते हैं. उन लोग ओवरलैप नहीं करें. चलिए ठीक है, उनका बॉर्डर इशू चल रहा है, हम लोग क्लाइमेट इश्यूज़ पे बात करेंगे, ऐसा उनका कहना है कि वी शुड वर्क टुगेदर रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर या हिमालयस, उनका ऐसा कहना है. तो ऑथर का कहना है कि इंडिया को इनसे इमिटेट करना चाहिए, सीखना चाहिए या ऐसा कुछ
अपना नीड्स को मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ऐसे ही कोऑपरेट कर लेना चाहिए. नेक्स्ट, despite the problematic bilateral relationship, even India aligns with China in international climate negotiation. इसमें बोल रहा है कि इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद इंडिया शुड कम अप विथ नेगोशिएशन. नेगोशिएशन मतलब क्या होता है? एक डिस्कशन, ताकि एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो सके, कॉमन एग्रीमेंट हो सके, प्रॉपरली डिसाइड कर सकते हैं. एंड ये बायलैटरल रिलेशनशिप मतलब एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल, it is consisting of any type of political, economic और your cultural agreement. तो ऐसा कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए चाइना के साथ और नेगोशिएशन होना चाहिए. अ similar path and holistic view could benefit India and the region in the climatic hit regions area. तो इसमें बोल रहा है कि कुछ भी ऐसा करना चाहिए, कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, एग्रीमेंट करना चाहिए, ताकि इस बेसिस में इन्वायरमेंटल वेस्ट में एटलीस्ट इंडिया काम करे चाइना के साथ, भले हम लोग का नेशनल सिक्योरिटी वाला इशू सॉल्व नहीं हो रहा है. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई वुड लाइक टू कंक्लूड द टॉपिक by giving you some of the gist to the topic. Firstly, I would like to tell you that पहले जो एक था आपका चाइना का एक मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था. उसमें क्या हो गया, जो इंडिया का जो हिमालयन रीजन है उसके ग्लेशियर में बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है. क्या? चाइना के मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया का हिमालयन रीजन पे, ग्लेशियर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और भी ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट होते गया मेल्टिंग एंड ऑल. इसके अलावा इसमें ये भी बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का कहना है, हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का कहना है कि एक पहले तो ग्लेशियर से रिलेटेड हम लोग को इश्यू सॉल्व करना चाहिए चाइना के साथ मिलके, ताकि जो फ्लड वाला सिस्टम होगा या फ्लड उससे आ जाएगा, उससे वो इशू सॉल्व हो जाए. प्लस इंडिया का वाटर मैनेजमेंट चैलेंज ये भी सॉल्व हो सके. इसके अलावा रीजनल कॉपरेशन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, ये हम लोग के बारे. फिर पीएम के हमारे गवर्नमेंट का क्या रीज़न दिया गया कि नहीं करेंगे हम लोग कॉपरेट. इट इज़ रिगार्डिंग अ बॉर्डर इशू जो हम लोग का चाइना के साथ चलता है, और LAC. इसके वजह से गवर्नमेंट मना कर दी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ही हैज़ सेड दैट इंडिया इज़ टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट और engage in affairs in terms of your in terms of your wait in terms of your trans ट्रांस बॉर्डर रिवर, ये वाले में इंडिया चाइना के साथ रिलेटेड इस इशू में, इस इशू से इंगेज्ड है. हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया कोई भी डेटा शेयर करे चाइना के साथ. किसका कहना है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का. So that was all for today. Hope you liked the video. Thank you and have a wonderful day ahead.